Hello everyone, welcome to Dream Orientation IELTS Speaking Proficiency. I hope you all are good at your places. In this video, I will discuss a sample answer of another cue card. So our today's cue card is describe an article on health you read in a magazine or on the internet. Our key points are what it was, where you read it and why you read it. हमारा क्वेश्चन है कि हमने कोई आर्टिकल रीड किया रिलेटेड टू हेल्थ मैगजीन में या फिर इंटरनेट में रीड किया। तो क्वेश्चन है ये क्या है, किसके रिलेटेड था ये आर्टिकल, हमने कहाँ रीड किया था और हमने क्यों रीड किया था। दिस इज ऑल अबाउट द क्वेश्चन। नाउ लेट्स डिस्कस द वोकैबुलरी विच आई हैव यूज्ड इन द सैम्पल आंसर। द फर्स्ट वन इज पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन मतलब पूल ऑफ नॉलेज, मतलब एक ऐसा सोर्स जिसमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो, जैसे कि इंटरनेट। वी कैन से इंटरनेट इज़ अ पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन। पर्टिकुलर कोई बुक है हमारी किसी भी चीज़ के रिलेटेड, फॉर एग्जांपल हम कोई बुक रीड कर रहे हैं रिलेटेड टू मैथमेटिक्स और उसमें हमें सारी नॉलेज मिल रही है फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस, तो हम उसे भी बोल सकते हैं दिस बुक इज़ अ पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर मी। देन फ्रॉम कवर टू कवर इट मीन्स फ्रॉम बिगनिंग टू एंडिंग, इट इज़ ईडियम। इसका मतलब है कि कोई भी चीज़ हमने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पढ़ी है। कीप इन माइंड व्हेनेवर वी से समथिंग रिलेटेड टू रीडिंग, लाइक रीडिंग अ बुक, रीडिंग एनी नॉवल, रीडिंग एनी लिटरेचर, वी कैन से दैट ऑफ कोर्स आई हैव रेड दैट नॉवल फ्रॉम कवर टू कवर। देन बिफोर गेटिंग वर्स, इट मीन्स बिफोर बिकमिंग बैड। इसका मतलब है किसी चीज़ का बहुत ज़्यादा बुरा होने से पहले हमें पता चलना। Then round the clock. Round the clock means every time and every day. Like instead of saying 24 into 7, we can say round the clock. Then marked on mind. It means still remember. Instead of saying that, yes, I still remember that, we can say that, of course, it has been marked on my mind. Our next word is directly or indirectly. It means clearly or unclearly. हम बोलते हैं मतलब कोई भी चीज़ का हमें फ़ायदा हो हम उसे बोल सकते हैं कि या इट कैन बी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बेनिफिशियल फॉर मी। मतलब किसी के थ्रू भी बेनिफिशियल हो सकता है और सीधा जब हमारे कॉन्टैक्ट में कोई आता तो वो भी हमारे लिए बेनिफिशियल हो सकता है, मतलब डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल, इसका मतलब है एक ऐसा पर्सन हु इज़ मेंटली और फिजिकली स्टेबल। देन हेल्थ फ्रीक, it means health conscious. Physical well-being means wellness, healthiness and health. Then spiritual growth, it means emotional development. देन इमीडिएट चेंज, इमीडिएट चेंज मतलब इंस्टेंट चेंज, जो ऑन द स्पॉट हमारे अंदर कोई चेंज आता है, जो हमें किसी चीज़ का पता चलता है और ऑन द स्पॉट हम चेंज करते हैं, इट मीन्स इमीडिएट चेंज। मोर चार्म मीन्स मोर ब्यूटी। रियल प्लेजर, इट मीन्स एक्चुअल हैप्पीनेस। हिडन रियलिटी, इट मीन्स हिडन फैक्ट्स। देन emphasized on, it means focus on. A dying habit, a very interesting word. Seriously, I like this word a lot. A dying habit, it means an interest which is almost disappear. For example, reading newspaper, reading printed media, or reading advertisements on printed media. These are kind of dying habits. So we can say reading newspaper is a kind of dying habit. Okay. Then thoroughly, thoroughly matlab deeply. Lastingly, lastingly matlab forever. Instead of writing forever or instead of speaking forever, we can say it lastingly. This is very formal word which we can use in both speaking and writing. So guys, this is the vocabulary. Now let's discuss the sample answer which I have written. Honestly speaking, changing lifestyle of present times has made myself health freak, by which I always stay updated on both printed and electronic media so that I can get necessary information related to physical well-being. Although reading newspaper is a dying habit, but I consider newspaper as a powerhouse of information. That's why I usually start my day after going through the newspaper articles thoroughly. Therefore, one article that has been marked on my mind lastingly, it was holistic health, as it is clear from the name that this is specially about the real pleasure of fitness. इसमें मैंने क्या बताया कि ऑनेस्टली स्पीकिंग जो आजकल का चेंजिंग लाइफस्टाइल हो रहा है,
उसने मेरे को मतलब आजकल का लाइफस्टाइल काफ़ी चेंज हो रहा है, इसमें क्या है कि लोग ज़्यादातर फिट एंड फाइन नहीं हैं, तो उसकी वजह से मैं ज़्यादा हेल्थ फ्रीक बन चुकी हूँ, मतलब मैं ज़्यादा हेल्थ कॉन्शियस बन चुकी हूँ, जिसकी वजह से मैं मतलब दोनों मीडियाज़ पर अपडेट रहती हूँ, प्रिंटेड पर भी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया दोनों पर मैं अपडेट रहती हूँ अपनी फ़िज़िकल वेलबींग को मेंटेन करने के लिए। और बेशक जो है कि न्यूज़पेपर्स है वो डाइंग हैबिट बन चुका है, एक ऐसी हैबिट जो कि डिसअपीयर हो चुकी है, लोग आजकल प्रिंटेड न्यूज़पेपर पढ़ते नहीं हैं। बट आई कंसिडर न्यूज़पेपर एज अ पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन, बट मैं ये कंसिडर करती हूँ कि ये पावर हाउस ऑफ इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर एक इंफॉर्मेशन का पूरा खजाना है। दैट्स वाई मतलब मैं हमेशा अपना डे स्टार्ट करती हूँ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को डीपली पढ़कर हमेशा। इसलिए एक ऐसा आर्टिकल है जो मुझे आज भी याद है, जिसका नाम था होलिस्टिक हेल्थ। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर है कि ये रिलेटेड टू है रियल प्लेजर ऑफ फिटनेस, मतलब एक्चुअली फिटनेस की असली खुशी क्या होती है ये उसके रिलेटेड है। सो as it is clear from the name that this is specifically about the real pleasure of fitness. However, I would like to say that before reading this article, I was completely unfamiliar with the concept of wellness. But when I explored this from cover to cover, then I came to know the hidden reality behind the famous saying, time is the great physician, because now I have become able to maintain my fitness on time before getting it worse. Actually, few months ago, I only emphasized on healthy diet and remained busy with computer round the clock. Therefore, I had to stay indoors all the time due to my academic commitments. Surprisingly, I suffered from some health hazards. However, when I came across this context of health that includes not only the obvious physical factors but mental, emotional, social, and even spiritual factors as well. जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर हो गया कि ये फिटनेस की असली खुशी हमें देता है, बट मैं ये बोलना चाहूँगी कि बिफोर रीडिंग दिस आर्टिकल मैं इस जो हेल्थ होती है, हेल्थ का एक्चुअल मीनिंग होता है, मैं उससे फैमिलियर नहीं थी। आई डिड नॉट नो दैट व्हाट इज़ द एक्चुअल मीनिंग ऑफ हेल्थ। आई जस्ट फोकस्ड ऑन माई डाइट, मैं अपनी सिर्फ डाइट पर ही फोकस रखती थी। मैं मतलब और राउंड द क्लॉक मतलब सारा दिन मैं कंप्यूटर्स के साथ ही जुड़ी रहती थी, जिसके वजह से कि क्या हुआ मतलब मैं थोड़े से हेल्थ हैज़र्ड्स के शिकार हो गई। और यही आर्टिकल है जिसे पढ़ने के बाद मुझे ये पता चला है कि टाइम इज़ अ ग्रेट फिजिशियन, मतलब कुछ भी अगर टाइम पर कर लिया जाए तो उसके जैसी रीस नहीं होती है, जैसे हम बोलते हैं। मतलब मैंने ये आर्टिकल पढ़ा तो मुझे पता चला कि एक्चुअली हेल्थ क्या होती है। अच्छा खाना ही सिर्फ हेल्थ नहीं होती है, टेंशन फ्री रहना, स्पिरिचुअल मतलब हमारी ग्रोथ क्या होती है कि हम टेंशन फ्री रहें, हमें कोई डिप्रेशन ना हो, हमारे माइंड पे कोई स्ट्रेस ना हो, कोई वर्कलोड ना हो, दैट मीन्स स्पिरिचुअल ग्रोथ। तो मुझे ये पता चला कि अच्छी हेल्थ के लिए एक ओनली फिजिकल हमारी फैक्टर्स नहीं इंक्लूड होते, ओनली हमारी डाइट नहीं इंक्लूड होती, बल्कि हमारी मेंटल स्टेट, हमारी इमोशनल, सोशल, मतलब कितना हम लोगों के साथ इंटरेक्ट हो रहे हैं, ये सारे फैक्टर्स कंसीडर होते हैं फॉर द बेस्ट वेलबींग. Then I made immediate changes in my living pattern. Since if I am not having awareness regarding all aspects of well being, then I can barely affect my health. This is the reason that despite being busy with my studies, I have balanced my schedule properly by assigning some time to outdoor activities like morning and evening walk, along with some yoga exercises, which not only fruitful for my physical and intellectual well being, but also I have opportunity to get socialized with others that directly or indirectly benefits my emotional and spiritual growth. At last, all credit goes to this article Holistic Health, which has brought more charm in my life. So I have considered myself amongst the well balanced individuals now. देन जब मुझे ये पता चला कि हेल्थ में कौन कौन से फैक्टर्स इंक्लूड होते हैं, तो मैंने इमीडिएट चेंजेस किए अपनी लाइफ पैटर्न में। तो जैसे कि मैं अवेयर हुई कि अपनी डाइट को अच्छे रखने के साथ साथ मुझे काफ़ी योगा एक्सरसाइजेज और मॉर्निंग वॉक और इवनिंग वॉक भी करनी चाहिए, तो मैंने उसके लिए भी अपना टाइम निकाला, एक टाइम मैनेज किया। देन
और मैं उसी उसी वजह से मैं लोगों के साथ और ज़्यादा सोशलाइज़ होने लगी, जबकि पहले मैं सोशलाइज़ ही नहीं होती थी। मैं सिर्फ इंडोर्स में काम करती थी, कंप्यूटर के सामने रहती थी, दैट्स ऑल। मेरी किसी के साथ सोशलाइजेशन नहीं होती थी, मतलब सोशल फैक्टर्स है ही नहीं थे मेरी लाइफ में। तो मैंने सोशलाइज होना स्टार्ट किया, जिसकी वजह से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे बेनिफिट्स मिले इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ के। एट लास्ट मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ ओनली होलिस्टिक हेल्थ वाला आर्टिकल ही था जिसने मेरी आंखें खोली, जिसने और चार्म लेकर आया मेरी मेरी जो लाइफ थी उसमें, और मुझे हेल्थ का अच्छा अच्छा मीनिंग समझाया कि व्हाट इज़ द राइट मीनिंग ऑफ हेल्थ। सो नाउ मैं अपने आप को एक वेल बैलेंस्ड इंडिविजुअल्स में से कंसिडर करती हूँ कि दैट आई हैव बैलेंस्ड माई लाइफ प्रॉपरली. See guys, this is the answer of this sample answer. I hope you like this, and if you have any query, please you can leave your comments in the comment section. Please subscribe and share my channel with your friends so that you can get more and more benefits of this. Once again, thank you. Have a nice day ahead.